کیا بات ہے جناب یوزارسیف؟ آپ اتنے برہم کیوں ہیں؟ آج لشکری معبد کے سپہ سالار پادیامون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا. کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے. وہ گوداموں کو بھی نظر آتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے. آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا؟ جسمانی تو کوئی نہیں، البتہ اس تکلیف دہ واقعے نے میری روح کو شدید مجروح کیا ہے. تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب دن دہاڑے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں. آپ یقین رکھیے جناب فرمانروا، اس واقعے کے سرکردہ عناصر کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی. کائنان معبود آمون کو بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہورمہوب، غور سے سنو. میں حکم دیتا ہوں کہ معبد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معبد سے نکال کر معبد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے. خون ریزی سے حد المقدور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. اطاعت. عالی جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. کہاں چلی بانو؟ یہ کیا، آپ تو پھر چل پڑی؟ اب مجھ سے مزید یہاں نہیں رکا جا رہا. میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں. یہ جنگ مصر کے خداؤں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے. دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے. اگرچہ میں جانتی ہوں کہ فتح آخر کس کی ہوگی. اپنے خداؤں کا دفاع کیجئے، اپنے آباء و اجداد کے آئین کی حفاظت کیجئے. خدایان مصر خطرے میں ہے. معبد کا دسترخوان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے. آئیے آمون کے مہمان بنیے. دشمن کے سامنے ڈٹ جائیے. اجازت مت دیجیے کہ آمون کا اتنا قدیمی آئین یوزارسیف کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے. اپنے آباء و اجداد کے آئین کی حفاظت کیجیے. وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے لیکن اپنے پیروکاروں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے. ہاں بالکل. اور کیا، تم کافر ہو گئے ہو. یوزارسیف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے. ہاں، میں خدائے آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا. آئیے 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 اندر تشریف لائیے اور آمون کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوئیے. اتنے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے رہے. آئیے رے، اور آج ہماری دعوت کا دکھاوا کر رہے ہیں. ہر خاص و عام کے لیے ہے. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بانو؟ کچھ نہیں، بس ذرا یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا. یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. بانو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماضی کی ایک یاد آ گئی تھی. قسم بے خدا یوزارسیف آنے والے ان دنوں سے بخوبی آگاہ تھا. میں اس بات کی گواہ ہوں. نذرانہ چندے کی پیٹی میں ڈال دیا جائے. ایک روز یوزارسیف پوتیفار کے لیے مصر کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا. لکھنے والے نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جب عمرہ اور فقراء کے مابین کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا پیروکار نہ رہے گا. تب یوزارسیف نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی، ایک فرزادہ خدا کی وساطت سے رونما ہوگا. اور آج میں اس مرد آسمانی، اس فرزادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں. تعجب ہے، آخر یوزارسیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں. بانو، آپ معبد کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی؟ آخر آپ ایک زمانے میں معبد آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی. وہ معبد جو یوزارسیف کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تناول فرمائیے. آپ لوگ آمون کے اس وسیع دسترخوان کے مہمان ہیں. خوش آمدید.
हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए, तनावल फरमाइए। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो युदार सीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर नफरीन पर दुश्मनाने आमून हो तो आमून। हम भी देखते हैं युदार सिंह कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अज्दाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद जो हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे, जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, कीजिए, खुशामदीद। खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरीत कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून, सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा जुजार सीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युदार सीफ, मर्द पर युजार सीफ, मर्द पर युजार सीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। माबदे आमून अपने हामियों की पनागाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना आइए, खिला आइए, खिला कर तशरीफ आमून लाइए की और लजीज तरफदारी मुरक्कब इकट्ठी किए ग़िज़ाओं जा से रहे हैं। लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत ज़दा सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। सुलेखा, हमसरे पुतिफार। ये तो सिपाहियों के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युजासिफ तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखरतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है महाबत पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्त खोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही औरम हूब की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, महाबत का इस्तेमाल कीजिए, दरवाजे बंद कर दें, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें।
तैयार हैं? आ जाओ नीचे। फरमाने जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुब, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदा आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से परस्तिश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहां तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तिनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। गौर से सुने, होरम हुब कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय देख कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? होरम हुब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो।
डालो। अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरमहूब। तीरंदाज तीर फेंके। तीरंदाजों, वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। बोल फेंको। तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
को मार डाला और उसने मार डाला उसे काजी आमून को मार डाला उसने हो जाए घबराए मत खौफजदा मत हो अब इस बिगड़ती सूरत हाल में जनाब आंख माहू ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी घबराए मत, चलो सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। काजी आमून को मार डाला। काजी आमून के हाथ में क्या मारा आप जा लोगों चुका ने है। सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। काजी आमून को मार डाला और उसने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और उसने मार डाला उसे। काजी आमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे तकलीफ दीजिए। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमून को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? इन्हें आमून को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। आमून का दिफा कीजिए। रुक जाइए। अजमत व बुजुर्ग आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं।
आमून मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए। मकतूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लायक परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, साबिस हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान आएगा। चांद परवास हाँ, कर वो गया। जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहां से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं।